of you. Again, I am coming back to my channel Asit Governmental Guru. Today, I will discuss educational measurement and evaluation part 3. It is not only educational measurement, assessment, and evaluation part 3. So, my friends, my YouTube channel is Asit Governmental Guru. My WhatsApp number it is 8327782034, and also if you want to join my Telegram channel, link is t.me/bapi2034. If you need PDF, then you contact with me in my WhatsApp number 8327782034. Today I will discuss the third part of educational measurement, evaluation, and assessment. So basically third part is related to evaluation and assessment. So you see, first I will discuss about convergent thinking. One question you will get: J.P. Guilford, a psychologist, created the terms convergent and divergent thinking in 1956. So, godfather of convergent and divergent thinking was J.P. Guilford, a psychologist. कॉन्वर्जेंट थिंकिंग में क्या होता है, हम एक सॉल्यूशन ढूंढते हैं, उसका कोई अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस नहीं होता है. जब कोई प्रॉब्लम होता है उसका एक सॉल्यूशन होता है, उसका कोई अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस नहीं है. मगर डाइवर्जेंट थिंकिंग में अल्टरनेटिव सॉल्यूशन से one solution cannot satisfy to us, so many different solutions are there. But in convergent thinking, when we think about when any problem is arised, then one solution is there, so that we cannot search any other alternative solutions. So you see, convergent thinking focuses on reaching one well-defined solution to a problem. एक सोल्यूशन हम ढूंढते हैं, एक सोल्यूशन हो जाएगा तो हम कोई अल्टरनेटिव सोल्यूशन हमको जरूरत नहीं है. दिस टाइप ऑफ थिंकिंग इज बेस्ट सुइटेड फॉर टास्क दैट इन्वॉल्व लॉजिक as opposed to creativity, such as answering multiple choice test or solving a problem where you know there are no other possible solutions. तो कॉन्वर्जेंट थिंकिंग ये क्रिएटिविटी के साथ लिंक नहीं. क्रिएटिविटी क्या है? क्रिएटिविटी रिलेटेड टू डाइवर्जेंट थिंकिंग. डाइवर्जेंट थिंकिंग में we try to find many solutions. We do not stick on a particular solution. But here convergent thinking, we stick on a particular solution. If problem is there, then one solution is coming, it is enough. So multiple choice test और कोई ऐसा प्रॉब्लम हम सॉल्व कर रहे हैं जिसका एक सॉल्यूशन है और कोई अदर अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस नहीं है. अभी आपका समझ में आया होगा. नेक्स्ट, डाइवर्जेंट थिंकिंग, ये क्रिएटिविटी. डाइवर्जेंट थिंकिंग रिलेटेड टू creativity, because divergent thinking believe on different ideas, believe on different solutions. यहाँ पर in case of divergent thinking, actually it means one solution cannot satisfy the person. The divergent thinking person want to find many solutions. So it is related to creativity. Okay, many ideas, many strategies. So with this type of thinking, you can generate ideas and develop multiple solutions to a problem. एक problem होगा तो multiple solutions ढूंढेंगे. While divergent thinking often involves brainstorming for many possible answers to a question. अभी चलेंगे कि एग्जाम्पल देखिए convergent thinking, divergent thinking का. Convergent thinking, if the copy machine breaks at work, a convergent thinker would call a technician right away to fix the copy machine. यदि copy machine खराब हो जाता है, if any type of defect is arise in copy machine,
then a convergent thinker call a technician, okay, to fix the copy machine. एक solution मिल गया. In case of divergent thinking, if the copy machine breaks at work, a divergent thinker would try to determine the cause of the copy machine's malfunction and various ways and assess various ways to fix the problem. One option may be called to a technician, other option to see the YouTube, or another option sending a company-wide email to see if any team member having experience with fixing copy machines. So ये डिफरेंट सॉल्यूशंस आ जाता है. कन्वर्जेंट थिंकिंग क्या है, एक टेक्नीशियन मिल गया, टेक्नीशियन को कॉल कर दो, वो ठीक हो जाएगा यदि कोई कॉपी मशीन में कोई प्रॉब्लम है. मगर डाइवर्जेंट थिंकर क्या है, डिफरेंट सॉल्यूशंस यू वांट टू फाइंड. कॉल द टेक्नीशियन, see the YouTube and try to fix it, try to fix the problem, or sending email, okay, sending email, basically sending it means message in company email, and to find any suppose employee of the company to fix the problem. तो ये है. तो अभी समझ में आ गया होगा. टेक्निक्स टू स्टिमुलेट डाइवर्जेंट थिंकिंग. एक है ब्रेन स्टोर्मिंग. ब्रेन स्टोर्मिंग वही है जो मेनी आइडियाज, मेनी स्ट्रैटेजीज, वांट टू फाइंड मेनी सॉल्यूशंस. क्लियर, वो है ब्रेन स्टोर्मिंग. एक मीन्स वी डू नॉट सेटिस्फाई ऑन ए पर्टिकुलर सॉल्यूशन, वी डू नॉट सेटिस्फाई ऑन ए पर्टिकुलर आइडिया, वी डू नॉट सेटिस्फाई ऑन ए पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी. वो ब्रेन स्टोर्मिंग है. रिकॉर्डिंग आइडियाज. बाय रिकॉर्डिंग आइडियाज वन कैन क्रिएट ए कलेक्शन ऑफ थॉट्स on various subjects that later becomes a source book of ideas. Collection of thoughts on various subjects, recording ideas. It is related to divergent thinking. Free writing. Write down different angles. Okay, write down it means some ideas. The idea is to write down whatever comes to mind about the topic without stopping. Free writing. Also it is related to divergent thinking. माइंड और सब्जेक्ट मैपिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. माइंड और सब्जेक्ट मैपिंग क्या है? दिस इन्वॉल्व्स ट्रांसलेटिंग ब्रेनस्टॉर्म्ड आइडियाज इनटू ए फॉर्म ऑफ विजुअल मैप और पिक्चर. एक विजुअल मैप और पिक्चर माइंड में आता है जब हम डिफरेंट आइडियाज के बारे में सोचते हैं. एक विजुअल मैप और पिक्चर हमारा माइंड में आता है, वो है माइंड और सब्जेक्ट मैपिंग. राइट, ये सब डाइवर्जेंट थिंकिंग टेक्निक्स है. अभी चलो क्वेश्चन को चलेंगे. Dash is the type of evaluation which is done during the teaching learning process to assess the ongoing construction or formation of knowledge and understanding of students. ऐसा क्या evaluation है जो जब टीचिंग लर्निंग प्रोसेस चल रहा है उसी समय हम उसको evaluate करेंगे. तो one thing you remember, during the teaching learning process evaluation is formative evaluation. राइट, फॉर्मेटिव एवैल्यूएशन ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस. क्योंकि समेटिव क्या है? समेटिव क्या है कि ईयर एंड में जो हमारा हाफ ईयरली और एनुअल एग्जामिनेशन होता है कि कोई पर्टिकुलर नंबर ऑफ टॉपिक्स कंप्लीट हो गया, हम एक असेसमेंट लेंगे, वो सब समेटिव है. फॉर्मेटिव क्या है? टीचिंग लर्निंग प्रोसेस चल रहा है और उस समय हम स्टूडेंट का परफॉर्मेंस को एवेल्युएट करेंगे, वो है फॉर्मेटिव एवेल्युएशन. ठीक है. समेटिव एवेल्युएशन क्या है? लेसन कंप्लीट हुआ कि यूनिट्स कंप्लीट हुआ, उसका एंड में हम एग्जाम होगा और उसको स्टूडेंट को एवेल्युएट किया जाएगा. द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट इज एवेल्युएटेड एट द एंड ऑफ द लेसन, एट द एंड ऑफ द टॉपिक. ठीक है, वो है समेटिव. तो ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इट इज फॉर्मेटिव एवेल्युएशन. आंसर इज सी. चलो क्वेश्चन नंबर 2. डैश इज अ टाइप ऑफ एवेल्युएशन दैट एवेल्युएट्स द क्वालिटी ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट and finds out the extent to which the instructional objectives have been achieved. Very important one. Two things. One, final product. मैं अभी बताया after completion of the lesson, after completion of the units, कि जो year end examination, कि half yearly examination, ये सब समेटिव है.
ओके, और ये भी हम मेजर करेंगे कि हाँ इट मीन्स whether my instructional objectives have been achieved or not. So how many instructional objectives have been achieved? ये सब जो आता है समेटिव इवैल्यूएशन. आंसर इज बिट बी, राइट. Question number 3. Does aims at identifying or diagnosing the weaknesses of students in a given course of instruction. जब हम एक स्टूडेंट का वीकनेस की स्ट्रेंथ को मेजर करते हैं, क्या वीकनेस है, किस एरिया में सपोज वर्कआउट करना चाहिए, तो वो जो एवेल्युएशन है वो है डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन. ओके, डिटेक्ट द वीकनेसेस एंड स्ट्रेंथ ऑफ द स्टूडेंट्स. ओके, उसका जो मेन एम है डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन का मेन एम है कि स्टूडेंट का वीक एरिया क्या है और उसका स्ट्रॉन्ग एरिया क्या है. यदि वीक एरिया है उसके ऊपर रिमेडियल क्लास होगा, वीक एरिया के ऊपर रिमेडियल क्लास होगा, तो हाउ टू ऑगमेंट और हाउ टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट इन वीक एरिया. तो आंसर इज बीट, इट इज डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन. Question number 4. Dash includes those objectives of education which attempt to develop mental faculties और intellectual abilities. जब mental और intellectual आ जाता है तब हमारा मन में आता है cognitive domain. Answer is bit C. Mental और intellectual it is cognitive. Affective का बात आता है जो emotion का बात है affective. Psychomotor बेसिकली जब हम मसल का मूवमेंट होता है, तो यहां पर जो है मेंटल फैकल्टीज और इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज कॉग्निटिव डोमेन है. जो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में ये 3 डोमेन को इंपॉर्टेंस दिया गया है. ठीक है, ब्लूम्स जो टैक्सोनॉमी है उसमें अफेक्टिव, साइकोमोटर और कॉग्निटिव डोमेन को एम्फसाइज किया गया है. आंसर इज बिट सी. क्वेश्चन नंबर 5. डैश इज रिलेटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ इमोशंस, वैल्यूज, एटीट्यूड्स and the development of those aspects of personality which are more influenced by heart than the mind. ये जो emotions, values, attitudes and the development of those aspects of personality which are more influenced by heart than the mind, ये जो emotions, values, attitudes आता है वो affective domain है. Answer is bit A, it's affective domain. ठीक है. Question number 6. Which links mental activity with physical movements, skills and reactions to environmental stimuli. ये साइकोमोटर डोमेन. जो साइकोमोटर डोमेन है, मूवमेंट ऑफ द मसल्स. ओके, मेंटल एक्टिविटी विथ फिजिकल मूवमेंट. वी नो दैट ड्यू टू एक्सरसाइज वी आर मेंटली अलर्ट वन, आवर कंसंट्रेशन इज मोर, वी फील एक्टिव. सो जो मेंटल अलर्टनेस, जो मेंटल कंसंट्रेशन किसके इधर आता है, फिजिकल मूवमेंट. तो ये जो है ये साइकोमोटर डोमेन. आंसर इज बिट बी. तो जो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में बेसिकली अफेक्टिव, साइकोमोटर, कॉग्निटिव डोमेन, ये तीनों डोमेन के ऊपर एम्फसाइज किया गया है. तीनों को भी डिस्कस किया. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 7. डैश असेस ए स्टूडेंट्स कॉम्प्रिहेंशन and understanding of a skill or lesson during the learning and teaching process. During the learning and teaching process चल रहा है, हम स्टूडेंट्स को असेस कर रहे हैं, तो इट इज असेसमेंट फॉर लर्निंग. जब इट मीन्स ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस चल रहा है. ठीक है. सो ड्यूरिंग द टीचिंग and learning process, basically the performance of the student is assessed. It is assessment for learning. बहुत important है. And it is happened during the teaching and learning process. Answer is bit A. Question number 8. Dash are typically administered at the end. End का बात जब आ जाता है वो ऑफ लर्निंग होगा. At the end of a unit, at the end of a lesson, ठीक है, at the end of the contents or grading period, and evaluate a student's understanding by comparing his or her achievement
against a class, district और nationwide benchmark और standard. एंड ऑफ यूनिट, अभी जो यूनिट्स था वो कंप्लीट हो गया, ठीक है, अभी टेस्ट होगा और उसका परफॉर्मेंस को कंपेयर किया जाएगा विद द स्टूडेंट्स, विद अदर स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास, विद द स्टूडेंट्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, विद द स्टूडेंट्स ऑफ द नेशन. एक बेंचमार्क वेदर ही और सी क्रॉस द बेंचमार्क और नॉट. तो ये जो एट द एंड का बात आता है वो ऑफ लर्निंग, आंसर इज बिट बी. बेसिकली ऑफ लर्निंग के ऊपर इंपॉर्टेंस है. ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग, फॉर लर्निंग. एट द एंड जो बात आता है ऑफ लर्निंग, आंसर इज बिट बी. क्वेश्चन नंबर 9, डैश एक्टिविटी इन्वॉल्व्स स्टूडेंट रिफ्लेक्शन ऑन लर्निंग, मॉनिटरिंग ऑफ हिज और हर ओन प्रोग्रेस. ये थर्ड वन है, इट इज आज लर्निंग, असेसमेंट आज लर्निंग. असेसमेंट आज लर्निंग क्या है? द स्टूडेंट हिमसेल्फ or herself reflect his or her performance, monitoring his or her performance. खुद का परफॉर्मेंस को मॉनिटर करता है, खुद का परफॉर्मेंस के ऊपर वो रिफ्लेक्ट करता है, तो वो है आज लर्निंग. ठीक है, तो तीनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट है. फॉर लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग जब टीचिंग लर्निंग ट्रांजैक्शन चल रहा है, और असेसमेंट ऑफ कब आता है? एट द एंड. ठीक है, और आज लर्निंग स्टूडेंट हिमसेल्फ और हरसेल्फ, ओके, मॉनिटरिंग अबाउट हिज और हर परफॉर्मेंस. बहुत इंपॉर्टेंट है. क्वेश्चन नंबर 9 बिट सी. फॉर्मेटिव असेसमेंट इज, जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है वो जब टीचिंग लर्निंग ट्रांजैक्शन चल रहा है, जब टीचिंग लर्निंग प्रोसेस चल रहा है, ठीक है, तब जो असेसमेंट होता है वो फॉर्मेटिव होता है. और मैं अभी बताया वो है असेसमेंट फॉर लर्निंग. असेसमेंट फॉर लर्निंग, आंसर इज बीट ए, असेसमेंट फॉर लर्निंग. क्योंकि अभी जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है वो ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, जब टीचिंग लर्निंग प्रोसेस चल रहा है उस समय फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है. ओके, फॉर्मेटिव टेस्ट होगा और पर्टिकुलर चाइल्ड को असेस किया जाएगा कि वेदर एक्चुअली his or her performance it is up to the mark or not. So it is assessment for learning. Answer is bit A. Summative assessment, summative assessment end में होता है, at the end of the lesson, at the end of the units. तो end में होता है means assessments of learning. Assessments of learning, answer is bit B. Right? So question number 12. Dash involves teachers use of evidence of a student learning to make judgments about student achievement. Dash involves teachers use of evidence of student learning to make judgments about student achievement. क्या है? टीचर एक्चुअली जो स्टूडेंट का लर्निंग है, टीचर को कुछ एविडेंस मिलता है और वो जजमेंट देता है कि उसका अचीवमेंट लेवल यही होगा. ठीक है, जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है, जब टीचिंग लर्निंग ट्रांजैक्शन चल रहा है तब फॉर्मेटिव असेसमेंट होगा. वहां पर टीचर डिटेक्ट करेगा कि इस पर्टिकुलर स्टूडेंट का लेवल क्या है, पर्टिकुलर स्टूडेंट का जो लर्निंग है वो किस लेवल पे है और वो क्या अचीव करेगा. आगे में जो ईयर एंड एग्जामिनेशन होगा कि कुछ लेसन्स की यूनिट्स कंप्लीट होने के बाद जो एग्जामिनेशन होगा वहां पर अचीवमेंट क्या होगा. तो इस केस में ये जो रिलेटेड है ये है असेसमेंट्स फॉर लर्निंग. ठीक है, आंसर इज बिट ए, इट इज असेसमेंट्स फॉर लर्निंग. क्वेश्चन नंबर 13. डैश एंगेजेस टीचर्स इन प्रोवाइडिंग डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, फीडबैक टू स्टूडेंट्स टू एनहांस देयर लर्निंग एंड इंफॉर्मेशन टू पेरेंट्स. बेसिकली ये जो होता है, जैसे फॉर्मेटिव टेस्ट होता है, बच्चों का जो फॉर्मेटिव टेस्ट होता है, ठीक है, फॉर्मेटिव टेस्ट में बेसिकली फॉर्मेटिव टेस्ट कब होता है? ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस. जब टीचिंग लर्निंग प्रोसेस चलता है तब फॉर्मेटिव टेस्ट होता है. जो फॉर्मेटिव टेस्ट में जो परफॉर्मेंस होगा उसको देखकर क्या करेगा टीचर? डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस देगा पर्टिकुलर स्टूडेंट का इंप्रूवमेंट के लिए. वो डिफरेंट टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शंस
बेसिकली गिवन टू द स्टूडेंट्स आफ्टर फॉर्मेटिव टेस्ट टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस। उनको फीडबैक देता है, द टीचर हैज गिवन फीडबैक टू द स्टूडेंट्स कि यू डू ऑल दीज थिंग्स सो यू कैन इम्प्रूव योर स्कोर। ओके, एंड ऑल्सो पेरेंट्स को भी इन्फॉर्म किया जाता है कि आपका स्टूडेंट का लेवल यही है। ओके, तो उसको थोड़ा सपोर्ट करो, ठीक है, उसको लर्निंग में थोड़ा सपोर्ट करो, तो धीरे धीरे उसका इंप्रूवमेंट आएगा और ईयर एंड एग्जामिनेशन में वो अच्छा परफॉर्म करेगा। तो ये जो भी होता है ये सब असेसमेंट्स फॉर लर्निंग, क्योंकि ये किसके रिलेटेड है, ये फॉर्मेटिव टेस्ट रिलेटेड है, क्योंकि फॉर्मेटिव टेस्ट होने के बाद ही ये सब इंस्ट्रक्शन होता है। द टीचर्स हैव गिवन डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस, द टीचर्स हैव गिवन feedback to the students, the teachers also they inform to their parents basically to improve the learning process in home। तो ये सब असेसमेंट फॉर लर्निंग आता है। तो आंसर इज बिट ए। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एवेल्युएशन, तो 3 टाइप्स ऑफ एवेल्युएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्मेटिव, समेटिव एंड डायग्नोस्टिक। फॉर्मेटिव एवेल्युएशन इज ए मॉनिटरिंग टाइप एवेल्युएशन, राइट, which is used to monitor the progress of the students during the class course session। ये जब टीचिंग लर्निंग ट्रांजैक्शन चल रहा है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस चल रहा है, तब जो स्टूडेंट का परफॉर्मेंस को मॉनिटर किया जाता है कि उसका प्रोग्रेस क्या है, ठीक है, उसके हिसाब से उसको फीडबैक दिया जाएगा। इट इज एम्ड एट इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। इसमें भी इंप्रूव होता है, क्योंकि फॉर्मेटिव एवेल्युएशन में एक्चुअली teachers also they assess themselves whether their teaching method is effective one or not। Okay, they want to change their teaching methods, clear? So automatically due to this also it means the performance of the teachers also would be improved because they change their teaching methods, teaching methodology, right? तो ये सब formative evaluation में आता है। नेक्स्ट समेटिव। समेटिव एवेल्युएशन इज डन एट द एंड ऑफ ए कोर्स, सेमिस्टर और एक क्लास और टॉपिक। मैं अभी बताया जो समेटिव एवेल्युएशन वो एंड में होता है, राइट, समेटिव एवेल्युएशन एंड में होता है। तो इट इज कंडक्टेड एट द एंड ऑफ द प्रोसेस ऑफ टीचिंग, इट इज कंडक्टेड एट द एंड ऑफ द प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, that is to say at the end of class, at the end of semester, at the end of the session etc। इसमें कोई confusion नहीं है। और प्लेसमेंट एवेल्युएशन, प्लेसमेंट एवेल्युएशन क्या है, जब स्टूडेंट का एंट्री होता है, ओके, जब एक स्टूडेंट को न्यूली स्कूल में एडमिट किया जाता है तब उसको एवेल्युएट किया जाता है, टेस्ट कंडक्ट किया जाता है, और टेस्ट कंडक्ट करने के बाद उसको कितना स्कोर मिला उसको जज किया जाता है, उसका परफॉर्मेंस को असेस किया जाता है, वही है प्लेसमेंट। थ्रू प्लेसमेंट एवेल्युएशन द एंट्री बिहेवियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको द एंट्री बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट इज असेस्ड, ठीक है। डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन, अभी मैं बताया था डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन में द स्टूडेंट का वीक एरिया क्या है और स्ट्रॉन्ग एरिया क्या है। यदि वीक एरिया है उसके ऊपर वर्कआउट किया जाएगा, रिमेडियल मेजर्स लिया जाएगा, एक्स्ट्रा क्लास कंडक्ट किया जाएगा, माइक्रो टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। तो वही है डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन, बेसिकली स्टूडेंट का जो वीक एरिया है और स्ट्रॉन्ग एरिया को डिटेक्ट किया जाता है, और वीक एरिया के ऊपर ज़्यादा वर्कआउट किया जाता है पर्टिकुलर स्टूडेंट का परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए, राइट। ये डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन, क्लियर। एक्सटर्नल एवेल्युएशन क्या है, एक्सटर्नल एवेल्युएशन क्या है, बाहर से एक्सटर्नल आएंगे, हम हमारा खुद का बच्चों को हम एवेल्युएट नहीं करेंगे। जैसे बोर्ड एग्जाम होता है, बेसिकली इन बोर्ड एग्जामिनेशन आवर स्टूडेंट्स कॉपी चेक बाय अदर एवेल्युएटर्स, नहीं, वो है एक्सटर्नल एवेल्युएशन। द टीचर्स हु आर टीचिंग ए पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, द टीचर्स हु आर टीचिंग ए पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स आर नॉट इन्वॉल्व्ड इन द एवेल्युएशन ऑफ देयर स्टूडेंट्स। जो बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं उनको हम एवेल्युएट नहीं करेंगे, आउटसाइड एवेल्युएटर्स एक्चुअली दे असेस आवर स्टूडेंट्स। इंटरनल एवेल्युएशन, हम हमारा खुद का बच्चों का परफॉर्मेंस को असेस करेंगे, एवेल्युएट करेंगे, वो है इंटरनल एवेल्युएशन, राइट। चलो ठीक है, नेक्स्ट
द फर्स्ट ऑफिशियल मेथड फॉर मेजरिंग एटीट्यूड, इसके ऊपर एक क्वेश्चन यूपीएससी प्रिंसिपल में आया था। द फर्स्ट ऑफिशियल मेथड फॉर मेजरिंग एटीट्यूड वाज फॉर्मुलेटेड बाय सिम्पसन, लुइस लियन थर्स्टन, जेपी गुइलफोर्ड, हावर्ड गार्डनर। इट इज थर्स्टन। आंसर इज विड बी। द फर्स्ट ऑफिशियल मेथड फॉर मेजरिंग एटीट्यूड वाज फॉर्मुलेटेड बाय लुइस लियन थर्स्टन। आंसर इज विड बी। बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो थोड़ा देखेंगे मेजरमेंट ऑफ एटीट्यूड। जो एटीट्यूड को मेजर करते हैं, एक है लिकर्ट स्केल, है डायरेक्ट मेजरमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है लिकर्ट स्केल। लिकर्ट स्केल में क्या है, एक जैसे वहां पर कोई 5 पॉइंट्स होता है, जैसे स्ट्रांगली एग्री, एग्री, ठीक है, नाइदर एग्री नॉर डिसएग्री, स्ट्रांगली डिसएग्री, डिसएग्री, ऐसे होता है। तो उसके ऊपर न्यूमेरिकल तो अभी देखेंगे आगे में। एक है डायरेक्ट मेजरमेंट सच एज लिकर्ट स्केल और एक है इन प्रोजेक्टिव टेक्निक। ये दो वे में एटीट्यूड को मेजर किया जाता है। जो हमारा एटीट्यूड है, ओके, एटीट्यूड को बेसिकली मेजर किया जाता है लिकर्ट स्केल में और प्रोजेक्टिव टेक्निक्स में। हमारा थिंकिंग क्या है, हमारा फीलिंग क्या है, नहीं कि वो सब एटीट्यूड में आता है। ओके, what do we think, what do we feel about the object, what do we think about the object, ये सब हमारा एटीट्यूड में आता है। इस एटीट्यूड में हमारा बिहेवियर क्या है, what is our behavior related towards object, what is our behavior towards object, what do we think about object, what do we feel about object, ये सब एटीट्यूड में आता है। तो टू मेजरमेंट in 2 ways attitude can be measured, one is the Likert scale, one is the projective techniques। लिकर्ट स्केल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक टेक्निक है फॉर मेजरमेंट ऑफ एटीट्यूड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एटीट्यूड को मेजर करने के लिए लिकर्ट स्केल होता है। ये स्केल कवर ए रेंज ऑफ एटीट्यूड्स फ्रॉम एक्सट्रीमली पॉजिटिव, न्यूट्रल, एक्सट्रीमली नेगेटिव। तो इसमें पॉजिटिव, एक्सट्रीमली पॉजिटिव, न्यूट्रल, एक्सट्रीमली नेगेटिव। कोई सपोज कोई ऐसा जैसे क्वेश्चन होता है ना, एक सेंटेंस दे दिया, वहां पर दे दिया गया डिसएग्री, स्ट्रांगली डिसएग्री, एग्री, स्ट्रांगली एग्री, कि नाइदर एग्री नॉर डिसएग्री, ऐसे आ जाता है। हम उसको मार्किंग करते हैं, हाँ मैं इसके ऊपर डिसएग्री, कि मैं एग्री करता हूँ, मैं स्ट्रांगली एग्री करता हूँ, मैं स्ट्रांगली डिसएग्री करता हूँ, कि मैं ना एग्री करता हूँ ना डिसएग्री करता हूँ। ये जो है लिकर्ट स्केल, इसी तरीके से हम जो है हम एटीट्यूड्स को मेजर करेंगे। दिस स्केल कंसिस्ट ऑफ स्टेटमेंट्स। स्केल में जो अभी जो बताया मैं स्टेटमेंट्स, एग्री, स्ट्रांगली एग्री, डिसएग्री, स्ट्रांगली डिसएग्री, नाइदर एग्री नॉर डिसएग्री, ये जैसे 0 to 5 पॉइंट्स होता है, मार्किंग होता है स्केल में 0 to 5 पॉइंट्स। उसमें पॉजिटिव, एक्सट्रीम, क्योंकि स्ट्रॉन्ग आ जाता है ना, एक्सट्रीम पॉजिटिव और एक्सट्रीम नेगेटिव पॉइंट्स रहता है। तो वंस ईच स्टेटमेंट हैज बीन असाइन्ड ए न्यूमेरिकल वैल्यू, एवरी स्टेटमेंट को एक न्यूमेरिकल वैल्यू दिया जाता है, और जितना जितना न्यूमेरिकल वैल्यू मिला उसको ऐड अप करके हम मीन निकालेंगे। अगेन दे आर एडेड अप एंड देन मीन इज कैलकुलेटेड, राइट। नेक्स्ट वन, व्हिच स्केल इज ऑफन यूज्ड इन कैरियर असेसमेंट प्रोग्राम्स टू गॉज ए लर्नर्स इंटरेस्ट एंड टेंडेंसीज so that they can help themselves select the right career path। जो कैरियर असेसमेंट प्रोग्राम होता है उसमें कौन सा स्केल को यूज किया जाता है, ठीक है, जो अल्टीमेटली बेसिकली इट हेल्प द स्टूडेंट टू चूज his or her career, in which direction he or she want to move, in which stream, okay, basically they want to take admission। तो ये जो कैरियर असेसमेंट प्रोग्राम में ये लिकर्ट स्केल को यूज किया जाता है। लिकर्ट स्केल क्योंकि सेंटेंसेस होता है, स्टेटमेंट्स होता है, स्टेटमेंट्स, ईच स्टेटमेंट को न्यूमेरिकली मार्क असाइन किया जाता है। जैसे हम इसके ऊपर 5 को सेंटेंसेस बना दिए, उसके ऊपर असाइनिंग है न्यूमेरिकल वैल्यू, जो जितना न्यूमेरिकल वैल्यू मिलेगा उसको ऐड करके मीन निकाल देंगे। तो उससे हम अल्टीमेटली हमारा कैरियर पाथ के ऊपर हम डिसाइड करेंगे। तो आंसर इज बिट सी।
The Likert scale is applied in the form of questionnaires, right? It is applied in the form of questionnaires. They say strongly disagree, disagree, neither disagree nor agree, agree strong. So एक क्वेश्चनेयर हो जाएगा. क्वेश्चनेयर में इस ये दिया जाएगा ऑप्शन कि ये जो सेंटेंस है आप स्ट्रांगली एग्री करते हो, कि एग्री करते हो, कि स्ट्रांगली डिसएग्री करते हो, कि डिसएग्री करते हो, कि ना एग्री करते हो, ना डिसएग्री करते हो. ऐसे इसमें मार्किंग होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू दिया जाता है, मार्किंग होता है, और जो अल्टीमेटली जो भी स्टेटमेंट्स होगा उसके ऊपर न्यूमेरिकल वैल्यू मिल गया है, उसको हम ऐड करेंगे, ऐड अप करके उसका मीन निकालेंगे, तब हम फाइनली कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे. तो ये लिकर्ट स्केल इज कंसिडर्ड ए बैलेंस्ड फॉर्म ऑफ एटीट्यूड. बैलेंस क्यों है? क्योंकि इसमें नेगेटिव है, पॉजिटिव है और न्यूट्रल भी है. न्यूट्रल नाइदर एग्री नॉर डिसएग्री, कुछ ऐसा स्टेटमेंट्स है हम ना स्टेटमेंट को एग्री करते हैं ना स्टेटमेंट को डिसएग्री करते हैं, वो न्यूट्रल हो गया. और जब डिसएग्री स्ट्रांगली डिसएग्री हो गया वो नेगेटिव हो गया, एग्री स्ट्रांगली एग्री वो पॉजिटिव हो गया. तो ये बैलेंस फॉर्म ऑफ एटीट्यूड टेस्टिंग बिकॉज इट कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव. पॉजिटिव्स एग्री स्ट्रांगली एग्री और नेगेटिव disagree strongly disagree. Equal number of positive and negative options are there. For this reason it is also balanced form of attitude testing इसको कहा जाता है. नेक्स्ट है थर्स्टन स्केल. द फर्स्ट ऑफिशियल मेथड ये है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन डिस्कस में कर चुका हूँ. द फर्स्ट ऑफिशियल मेथड फॉर मेजरिंग एटीट्यूड वाज फॉर्मुलेटेड बाय लुइस लियन थर्स्टन, ए यूएस पायोनियर in the fields of psychometrics and psychophysics in 1928. His objective was to measure people's attitude regarding religion. Regarding religion, ये भी इसके ऊपर भी थोड़ा देख लीजिए, क्वेश्चन आ सकता है. People's attitude regarding religion. तो रिलीजियन के ऊपर कुछ स्टेटमेंट्स होगा और हम उसमें स्टेटमेंट को एग्री करेंगे कि डिसएग्री करेंगे, कि स्ट्रांगली एग्री करेंगे, कि स्ट्रांगली डिसएग्री करेंगे. उसके हिसाब से न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन होगा और उसके बाद हम उसको ऐड अप करके मीन निकालेंगे और कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे. तो ये है, ठीक है, वही चीज में जो बताया ये थर्स्टन स्केल. सो थर्स्टन स्केल बेसिकली रिलेटेड टू व्हाट? एटीट्यूड. इसके ऊपर एक क्वेश्चन आया था. अभी चलेंगे नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व. तो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व और बेल शेप कर्व देख लीजिए. तो यहाँ पर क्या है, जो ये मीन है, जो डिस्ट्रीब्यूशन मीन है, ठीक है, इसके ऊपर तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन मीन है, मीन प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन इट इज इक्वल टू 34.1. तो बेसिकली ये 30, ये जो एरिया है, ये 34.1 प्लस माइनस डिस्ट्रीब्यूटिव मीन प्लस माइनस प्लस 1 स्टैंडर्ड डेविएशन माइनस 1 स्टैंडर्ड डेविएशन. तो ये लगभग ये जो है आपको याद रखना है, ये 68.27 होगा, क्योंकि देखिए 34.26 भी होता है ज़्यादातर. ये में आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है. ये जो मीन प्लस माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन ये 68.26 और 27. तो बेसिकली 34.13, ये है 34.13, ये है 34.13, ये 34.13. और जब वैसा ही आप देखिए, सपोज मीन प्लस माइनस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन और एक मीन प्लस माइनस 3 स्टैंडर्ड डेविएशन, इसको याद रखना है वैल्यू. सो प्लस माइनस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन में 95.4% आ जाता है, और जो मीन प्लस माइनस 3 स्टैंडर्ड डेविएशन में ये 99.7 और ये 95.4 और ये जो पार्ट है ये 68.2 प्लस माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन. तो इसको याद रखना है. तो क्लियर, इसके ऊपर आप देख लीजिए, यहाँ पर दे दिया बिटवीन एरिया कवर्ड टू टोटल एरिया ऑफ द नॉर्मल कर्व. तो बेसिकली 2 एलिमेंट्स है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, जो बेल शेप कर्व होता है. तो इसमें और एक चीज़ बता देता हूँ, ये जो इसमें जो टॉप पार्ट है, यहाँ पर एक्चुअली जो डिस्ट्रीब्यूटिव मीन है, यहाँ पर मीन
इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मोड। ठीक है, ये मीन है। फिर हम उसको देखते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन से, हम उसका डिस्पर्सन देखते हैं, मेजर करते हैं। ठीक है, अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन से हम डिस्कस करेंगे आगे में। तो ये देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। मीन प्लस माइनस 1 स्टैंडर्ड डेविएशन 68.27, ये भी 68.26 भी हो सकता है, 68.26 भी हो सकता है। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आया था यूपीएससी प्रिंसिपल में। और मीन प्लस माइनस ये है 2 स्टैंडर्ड डेविएशन, इट इज़ 95.45%। और मीन प्लस माइनस 3 स्टैंडर्ड डेविएशन, इट इज़ 99.73%। ठीक है, ये आता है। और मीन प्लस माइनस 1.96 जब आता है तब 95%, और 2.578 जब आता है मीन प्लस माइनस 2 ओके 0.578 स्टैंडर्ड डेविएशन, इट इज़ 99% होता है। और मीन प्लस माइनस 0.6745 ये 50% होता है। इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, उसको अच्छे से देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ओनली ये भी आता, ये भी क्वेश्चन आएगा। सपोज ओनली पूछेगा कि मीन प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन इट इज़ 34.13, कि मीन माइनस 1 स्टैंडर्ड डेविएशन ये भी 34.13। ठीक है, तो दोनों मिलाकर प्लस माइनस हो जाता है ना, ये 34.13, ये 34.13, 68.26 हो गया दोनों। ठीक है, ये जो एरिया इतना ये हो गया 68.2%, ये हो गया। नेक्स्ट जब आएगा, जब ये पार्ट आ जाएगा, ये पार्ट देख लीजिए। तो बेसिकली मीन प्लस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन प्लस 2 सिग्मा, स्टैंडर्ड डेविएशन का सिंबल सिग्मा है, तो वो आ जाता है बेसिकली 47 में 34.13 है, ये बेसिकली 34.13 है परसेंट, और ये 13.6 47 ठीक है 73 लगभग ये आ जाता है। और वैसा ही ये आ जाएगा मीन माइनस 2 सिग्मा बट 2 इन स्टैंडर्ड डेविएशन, वैसा ही हो गया वैसा। तो ये दोनों मिलाकर, ये सभी मिला देंगे तो 95 पॉइंट, क्योंकि ये 47.73, ये इधर साइड में भी 47.73, तो 95.4% हो गया ना। ठीक है, वैसे ही जब हम मेन प्लस माइनस 3 सिग्मा 3 स्टैंडर्ड डेविएशन, थ्राइस ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन देखेंगे तो ये टोटल एरिया आ जाएगा, ये टोटल एरिया आ जाएगा। ठीक है, ये टोटल एरिया आ जाएगा। तो वन साइड में कितना हो जाता है, ये 50 हो गया, ये भी 50 हो गया, 50% हो जाता है। जैसे मेन प्लस 3 स्टैंडर्ड डेविएशन ये आ गया 50%, और मेन माइनस 3 स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू ऑल्सो 50%। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली 99.7 है, तो लगभग इट इज़ 100% हो जाता है। ठीक है, उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। ये पार्ट को अच्छे से देख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये पार्ट को अच्छे से देख लो, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट द ग्राफ ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड्स ऑन व्हिच 2 फैक्टर्स। अभी मैं देखा मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके, जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व डिपेंड्स ऑन 2 फैक्टर्स, मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। आंसर इज बिट ए। क्वेश्चन 17, यहाँ पर थोड़ा स्टैंडर्ड स्कोर के ऊपर देखेंगे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड यूज टू इंडिकेट an individual's relative position in a group, individual's relative position in a group by showing how far his achieved score is above or below average। उसका रिलेटिव पोजीशन हम देखेंगे स्टैंडर्ड स्कोर से, कि एवरेज स्कोर से कितना ज़्यादा है कि एवरेज स्कोर से कितना कम है। तो कंपेयर करेंगे अदर स्टूडेंट, इट मीन्स कंपेयर द स्कोर ऑफ ए पर्टिकुलर स्टूडेंट विद अदर स्टूडेंट्स। दिस इज द अप्रोच ऑफ स्टैंडर्ड स्कोर। And standard score expresses performance of the individuals in terms of standard deviation units from the mean। तो मीन से कितना डिफर करता है। सपोज एक
स्टूडेंट को स्कोर मिला तो मीन स्कोर से कितना डिफर करता है, मीन स्कोर से कितना ज़्यादा है और मीन स्कोर से कितना कम है, वही है स्टैंडर्ड स्कोर। तो इसमें टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड स्कोर 2 टाइप्स है। जेड स्कोर है, एक जेड स्कोर, और जेड स्कोर का जो फॉर्मूला ये है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है रॉ स्कोर माइनस मीन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। एक्स जो है रॉ स्कोर है, एम जो है वो एरिथमेटिक मीन ऑफ रॉ स्कोर, ये जो रॉ स्कोर का एरिथमेटिक मीन है, और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ रॉ स्कोर। एक्स जो है वो रॉ स्कोर है, एम जो है वो मीन ऑफ रॉ स्कोर, और एस डी जो है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ रॉ स्कोर। ठीक है, तो जेड स्कोर रिप्रेजेंट्स टेस्ट परफॉर्मेंस डायरेक्टली एज द नंबर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन यूनिट्स ए रॉ स्कोर इज अबव और बिलो द मीन। द जेड स्कोर्स आर द यूनिट्स ऑफ नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व रेंजेस, ये रेंजेस को याद रखना है, -3 सिग्मा टू +3 सिग्मा, -3 स्टैंडर्ड डेविएशन टू +3 स्टैंडर्ड डेविएशन। इस केस में विच मीन्स विथ मीन वैल्यू 0 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 1, इसमें याद रखना है जो मीन वैल्यू होगा वो 0 होगा एंड स्टैंडर्ड डेविएशन वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, ये जो फॉर्मूला है इसमें कंप्यूट करना है आपको। तो जेड स्कोर ऑलवेज नेगेटिव होगा। नेगेटिव कब होगा ना, जो रॉ स्कोर है, जब एक्स का वैल्यू सभी समय मीन वैल्यू से कम होगा, एम जो है मीन वैल्यू है, जब रॉ स्कोर का वैल्यू मीन वैल्यू से कम होगा तब उस केस में जेड स्कोर जो होगा वो ऑलवेज नेगेटिव होगा। इसी केस में व्हेन द रॉ स्कोर, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है, व्हेन द रॉ स्कोर इज स्मॉलर दैन द मीन। और हम देखेंगे कि मीन स्कोर से कितना डेविएशन है, जो स्टूडेंट का स्कोर है वो मीन स्कोर से कितना डिफर करता है। तो ये जो हम देखेंगे रिलेटिवली, तो ये फॉर्मूला हम डालेंगे जेड स्कोर का, रॉ स्कोर माइनस मीन ऑफ रॉ स्कोर्स डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ रॉ स्कोर्स, ये फॉर्मूला याद रखिए। और नेक्स्ट है टी स्कोर। टी स्कोर क्या है, एक एग्जांपल दिया है, देखिए सपोज मीन स्कोर इट इज मीन वैल्यू 50 और स्टैंडर्ड डेविएशन 10, मीन वैल्यू दिया है, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है। तो यहाँ पर एक्चुअली मीन वैल्यू दिया है 50 और स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है 10, और आपको जेड स्कोर भी मिल गया, तब टी स्कोर क्या है, टी स्कोर क्या है, इट इज मीन स्कोर प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन इनटू जेड स्कोर। तो इसको याद रखना है कि ये है मीन स्कोर ठीक है। इसमें चेक कर लीजिए, इसमें जो टी स्कोर का फॉर्मूला है, ओके, टी स्कोर इज इक्वल टू इट इज मीन स्कोर प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन इनटू जेड स्कोर, और वन इज इन द टी स्कोर्स आर प्रीफर्ड टू जेड स्कोर्स, ओके, बिकॉज जो जेड स्कोर है कभी भी नेगेटिव हो सकता है, क्योंकि जब ये होगा, जब रॉ स्कोर्स मीन से कम होगा, क्योंकि फॉर्मूला है ना जो जेड स्कोर का, रॉ स्कोर माइनस मीन ऑफ द रॉ स्कोर्स बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। जब ये रॉ स्कोर्स ये हो जाएगा, रॉ स्कोर एक्स, रॉ स्कोर का सिंबल एक्स है, वो मीन स्कोर से लेस होगा, वो उस समय क्या होगा ना, जेड स्कोर नेगेटिव होगा। मगर यहाँ पर क्या है, टी स्कोर सभी समय पॉजिटिव होता है। तो आपको टी स्कोर का फॉर्मूला आ गया, ये है मीन प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन इनटू जेड स्कोर, राइट। और एक है स्टैनाइंस है। सो स्टैंडर्ड जो स्कोर है वो 3 टाइप से, एक जेड स्कोर, टी स्कोर एंड स्टैनाइंस। इसके ऊपर क्वेश्चन आया था कि यूपीएससी प्रिंसिपल में। स्टैनाइंस क्या है, इट वाज डेवलप्ड बाय यूएस एयरफोर्स ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर 2। आपको याद रखना है इसके ऊपर, ये जो स्टैंडर्ड स्कोर है इसको डेवलप्ड किए थे यूएस एयरफोर्स ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर 2। ये एक टेक्निक है, ये एक टेक्निक है, नॉर्मलाइज द स्टैंडर्ड स्कोर्स। तो स्टैनाइंस क्या है, जो सिंगल डिजिट स्कोर्स होता है, बेसिकली 1 to 9, मैक्सिमम 9 है, मिनिमम 1 है, ओके। जो रॉ स्कोर्स है हम इसको 9 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, बिकॉज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रॉ स्कोर्स इज डिवाइडेड इनटू 9 इक्वल पार्ट्स। जो स्टैनाइन 5 होगा वो एवरेज होगा, जो रॉ स्कोर्स है हम उसको
क्या करेंगे, रेंज रॉ स्कोर्स का रेंज रहेगा 1 to 9, सिंगल डिजिट स्कोर होगा। और इसमें जो 5 स्कोर होगा ना वो एवरेज होगा, वो सेंटर होगा, वो दिया है स्टैंडर्ड 5 इज इन द सेंटर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन और इंक्लूड्स ऑल केसेस विद इन 1/4 ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ आइदर साइड ऑफ द मीन। ये जो मीन स्कोर हो गया, इस साइड में 25%, इस साइड में 25%, क्योंकि वो 1 to 9 है, ठीक है। 1 to 9 मीन्स एवरेज क्या आ गया, एवरेज 5 आ गया। तो इस साइड में 1/4, इस साइड में 1/4, इस साइड में 1/4, राइट। समझ में आ रही कि नहीं? तो ये थोड़ा आपको याद रखना है। When raw scores are transformed is raw scores को जब हम स्टैंडर्ड स्कोर्स को में कन्वर्ट कर देंगे तब हमको एक नॉर्मल कर्व मिलेगा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व मिलेगा। ये भी क्वेश्चन आता है, याद रखना है। जब when raw scores are transformed into स्टैंडर्ड स्कोर्स देन नॉर्मल से कर्व हमको मिलेगा। तो जो स्टैंडर्ड स्कोर्स है 3 टाइप्स है, और यहाँ पर जो है एक सिंगल डिजिट स्कोर होता है 1 to 9 स्टैंडर्ड स्कोर, इसके ऊपर आता है, क्वेश्चन आएगा, ठीक है। यहाँ पर दिया है इन द स्टैंडर्ड स्कोर 9 पॉइंट स्केल इज यूज्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। इन विच 9 इज हाई एंड 1 इज लो एंड 5 इज एवरेज। Standards are normalized standard scores that make it possible to compare a student's performance on different tests. To compare a student का परफॉर्मेंस डिफरेंट टेस्ट में क्या है उसको कंपेयर किया जाएगा स्टैंडर्ड स्कोर से। एक पर्टिकुलर स्टूडेंट है, वो डिफरेंट टेस्ट देगा, वन पर्टिकुलर स्टूडेंट गिवन डिफरेंट टेस्ट एंड what is his or her performance, okay, relative performance in different tests, राइट। यहाँ पर दिया देखिए, इफ द वैल्यू ऑफ x, यहाँ पर जेड स्कोर, आप जेड स्कोर एक फार्मूला में बोला था, जेड स्कोर में इसको करके निकाल दीजिए, इट इज रॉ स्कोर माइनस मीन स्कोर डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, उसके हिसाब से करके निकाल दीजिए। यहाँ पर दिया है देखिए, वैल्यू ऑफ x दिया है 35, मीन स्कोर 65 और डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन 25, तो ये हो गया -30/25, ठीक है। -30/25 -6/5 1.2, ये जो है आंसर जो है बिट बी है। आप वो फार्मूला से निकाल कर देख लीजिए, ये x माइनस मीन स्कोर डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, ये है जेड स्कोर, ये जेड स्कोर फार्मूला। तो ये दिया है देखिए, अब x जो है वो ये रॉ स्कोर है, ये मीन है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द रॉ स्कोर से, इसके हिसाब से आंसर इज बिट बी। द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑल्सो क्लासिफाइड एज गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन। जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है उसको हम गॉसियन, क्योंकि गॉस जो है ये जो है उसका निर्माता है, गॉस एक्चुअली कंस्ट्रक्टेड द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, तो इट इज द गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन, आंसर इज बिट ए। Consider the normal distribution, spread is increased and the height of the curve is decreased। ये होगा, जैसे ये लाइन है, ये होगा, वो हाइट कम हो जाएगा मगर इसका स्प्रेड ज़्यादा होगा, टच नहीं करेगा एक्स एक्सिस को, इसका हाइट कम हो जाएगा मगर वो स्प्रेड ज़्यादा हो जाएगा। इसके कौन सा केस में ना, जहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन कम होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन बढ़ जाएगा, जब स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, बढ़ जाएगा। जितना स्टैंडर्ड डेविएशन बढ़ेगा वो क्या होगा, हाइट कम हो जाएगा जो बेल शेप कर्व का, और वो ज़्यादा स्प्रेड आउट होगा। वही ये देखिए, लार्जर वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, जितना स्टैंडर्ड डेविएशन का वैल्यू ज़्यादा होगा उतना हाइट कम होगा, बेल शेप का हाइट कम होगा और ज़्यादा स्प्रेड होगा। जब स्टैंडर्ड डेविएशन का वैल्यू कम होगा तो जो बेल शेप कर्व है वो उसका हाइट बढ़ेगा और थोड़ा स्प्रेड कम होगा। समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 19 बिट सी। Question number 20, around the central value of the observations, the extent to which the values depart from normal, the extent, इसको याद रखिए, the extent to which the values depart from normal distribution, it is skewness, answer is bit C। आप इसको याद रखिए, the extent to which the values depart from normal distribution से वैल्यू कितना डिफर कर रहा है तो उसको हम skewness बोलेंगे, आंसर is bit C। Normal distribution is applied for
कॉन्टिन्यूस रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, इरेगुलर रैंडम वेरिएबल, अनसर्टन रैंडम वेरिएबल। ये कॉन्टिन्यूस रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज अप्लाइड, ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर कॉन्टिन्यूस रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन। आंसर इज बिट ए। 22 द शेप ऑफ द नॉर्मल कर्व, वेरी इजी वन। द शेप ऑफ द नॉर्मल, द शेप ये है, द शेप ऑफ द ये है, द शेप ऑफ द नॉर्मल कर्व इज बेल शेप्ड, ओके, आंसर इज बिट ए। क्वेश्चन नंबर 23, normal distribution is symmetric. Symmetric is about variance, mean, standard deviation, covariance. Symmetric about mean. It is symmetric about mean. जो यहाँ पर देख लीजिए, ये बेल शेप कर्व है, नहीं कि यही पर है, ये मीन है, मीन, मीडियन, मोड, ये तीनों इक्वल है, नहीं कि ये हाइट जो है ऑर्डिनेट है, क्योंकि यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है वो सिग्मा, एक्स कोऑर्डिनेट जो आपसीसा होता है वो सिग्मा, और ऑर्डिनेट में आएगा, वाई कोऑर्डिनेट में आएगा मीन, आएगा जो डिस्ट्रीब्यूशन मीन आएगा, तो ये मीन है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिक अबाउट मीन, आंसर इज बिट बी, राइट। 24 फॉर ए स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट द वैल्यू ऑफ मीन इज स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट द वैल्यू ऑफ मीन इज 0, चाहे वैल्यू ऑफ द मीन हो कि मीडियन हो, ओके, मीन कि मीडियन कि मोड, ये 0 होगा। स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट में तीनों का वैल्यू 0 होगा, मीन, मीडियन, मोड का वैल्यू 0 होगा फॉर स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट, इसको याद रखना, आंसर इज बिट सी। द एरिया अंडर स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व, ये परसेंट में आता है, ये जो टोटल होता है ना, ये जो एरिया, ये जो बेल शेप कर्व होता है, इसके अंडर जो एरिया आ जाता है, ये क्या होगा, 1 होगा, 100% ना, 100% मीन्स 1 होगा, आंसर इज बिट बी। जैसे ये होता है ना, ओके, जो एरिया है अंडर 1 है, 100% होगा, तो 100% होगा मीन्स क्या होगा, 1 होगा, आंसर इज बिट बी। द एरिया अंडर ए स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व, द स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट द वैल्यू 0, क्योंकि सिमेट्रिक मीन में होता है, सिमेट्रिक अबाउट द मीन, और वहाँ पर मीन, मीडियन, मोड का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, आंसर इज डी, आंसर इज डी। फॉर ए स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड, अच्छा इस केस में द स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट में हमारा मीन, मीडियन, मोड का वैल्यू कितना हुआ, 0 हुआ, और यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन का वैल्यू कितना होगा, 1 होगा, आंसर इज बिट बी, राइट। 28 स्क्यूनेस ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो स्क्यूनेस है वो 0 है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो स्क्यूनेस होगा, स्क्यूनेस ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज 0, ठीक है, आंसर इज बिट सी। फॉर ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इट्स मीन, मीडियन, मोड आर इक्वल, यस, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में तीनों इक्वल होगा, आंसर इज बिट ए, ट्रू होगा, ठीक है। क्वेश्चन 30, इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनेट ऑकर्स एट, द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनेट मीन्स वाई कोऑर्डिनेट, क्योंकि अभी मैं बताया था, इसमें बेसिकली ये जो इसमें जो बेल शेप कर्व होता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, तो जो हाइट में हाईएस्ट वैल्यू ऑफ द ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट ये सब जैसे मीन है, और ये सिग्मा, देन 2 सिग्मा, बट 2 स्टैंडर्ड मीन, तो 2 स्टैंडर्ड डेविएशन, देन 3 स्टैंडर्ड डेविएशन, ऐसे होता है, नहीं ऐसे होता है, राइट। तो जो ऑर्डिनेट, ये सब एक्स कोऑर्डिनेट में आता है, वाई कोऑर्डिनेट में कौन आएगा, वाई कोऑर्डिनेट जो है ऑर्डिनेट है, वो मीन आएगा, आंसर इज बिट ए। क्वेश्चन 30, द शेप ऑफ द नॉर्मल कर्व डिपेंड ऑन इट्स
किसके ऊपर डिपेंड करेगा? स्टैंडर्ड डेविएशन। जो नॉर्मल कर्व का शेप होगा वो स्टैंडर्ड डेविएशन के ऊपर डिपेंड करेगा। आंसर इज बिट बी। 32 द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट ई appearing in normal distribution, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट ई appearing in normal distribution is 2.7183, बट 2.72 अब राउंड अप करते हो अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, इट इज 2.72। अदरवाइज आपको रिमेंबर करना है 2.7183। 33 इन स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन द वैल्यू ऑफ मोड इज 0। क्यों मैं बोला था वैल्यू ऑफ मेन मीडियन मोड 0 होगा और स्टैंडर्ड डिवीजन का वैल्यू 1 होगा। 34 ये थोड़ा हम रिलायबिलिटी के ऊपर आएंगे, डिफरेंट मेथड से टू मेजर रिलायबिलिटी। जो मेजर्स ऑफ ए गुड टेस्ट है ना, मेजर्स ऑफ ए वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, यूजेबिलिटी, तो इसमें डिफरेंट मेथड से एक है ये डिफरेंट मेथड्स को ओनली रिमेंबर कीजिए। टेस्ट रीटेस्ट मेथड एक है, टेस्ट रीटेस्ट मेथड, मेजर्स ऑफ स्टेबिलिटी एंड प्रिसिशन, और एक है इक्विवेलेंट फॉर्म्स मेथड, मेजर ऑफ इक्विवेलेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्प्लिट हाफ मेथड आया था, ये जो स्प्लिट हाफ मेथड किसके साथ लिंक है? वो रिलायबिलिटी के साथ लिंक है। और जो स्प्लिट हाफ मेथड है यहाँ पर एक याद रखिए, स्पीयरमैन ब्राउन फार्मूला टू मेजर रिलायबिलिटी ऑफ द टेस्ट। स्पीयरमैन ब्राउन, ये स्पीयरमैन ब्राउन, इसको याद रखिए फार्मूला। ये जो स्पीयरमैन ब्राउन फार्मूला है वो किसके साथ लिंक है? स्प्लिट हाफ मेथड, और इट इज स्प्लिट हाफ मेथड रिलेटेड टू रिलायबिलिटी। और एक है कि कूडर रिचर्डसन मेथड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, ये भी रिलेटेड टू रिलायबिलिटी, टू मेजर ओके द रिलायबिलिटी कोफिशिएंट। कूडर रिचर्डसन मेथड ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक इंटररेटर मेथड, इंटररेटर मेथड, तो ये मेजर्स ऑफ कंसिस्टेंसी। इंटररेटर मेथड मेजर्स ऑफ कंसिस्टेंसी को मेजर करता है। कूडर रिचर्डसन मेजर्स ऑफ इंटरनल कंसिस्टेंसी, स्प्लिट अप भी मेजर्स ऑफ इंटरनल कंसिस्टेंसी, और इक्विवेलेंट फॉर्म्स मेथड मेजर ऑफ इक्विवेलेंस, और टेस्ट रीटेस्ट मेथड इट इज मेजर्स ऑफ स्टेबिलिटी एंड प्रिसिशन। इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा 100%। तो ये जो 5 मेथड्स आपको याद रखना है, टेस्ट रीटेस्ट, इक्विवेलेंस, स्प्लिट हाफ में आपको स्पीयरमैन ब्राउन फार्मूला डालना है, और कूडर रिचर्डसन मेथड जो मेजर्स ऑफ इंटरनल कंसिस्टेंसी को मेजर करता है, और इंटररेटर मेथड मेजर ऑफ कंसिस्टेंसी। तो ये मेथड्स को आपको याद रखना है, ठीक है। डैश इज मोस्टली यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग द कोफिशिएंट ऑफ रिलायबिलिटी। तो कोफिशिएंट ऑफ रिलायबिलिटी बेसिकली कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, ये है कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशंस को ज़्यादा यूज किया जाता है। और एक स्पीयरमैन है, स्पीयरमैन का ज़्यादा नहीं, पियर्सन का मेथड। तो आंसर इज बिट ए। तो जब हम रिलायबिलिटी कोफिशिएंट निकालेंगे तो पियर्सन का कोरिलेशन मेथड को ज़्यादातर यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 34। 35 डैश रिफर्स टू द ट्रूथफुलनेस ऑफ द टेस्ट रिजल्ट। तो ट्रूथफुलनेस जो जब रिजल्ट आता है, जो वैलिडिटी, बेसिकली वैलिडिटी क्या है? तो हमें जब क्वेश्चन कंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन में जो आइटम्स होगा हम हमारा ऑब्जेक्टिव लेते हैं कि इसी ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए हम एक टेस्ट कंडक्ट करेंगे और पर्टिकुलर स्टूडेंट का परफॉर्मेंस हम जज करेंगे नहीं। तो ये वैलिडिटी है। यदि जिस पर्पज़ के लिए हम टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं वो पर्पज़ के हिसाब से क्वेश्चन कंस्ट्रक्ट किया जाएगा और एग्जामिनेशन एडमिनिस्टर किया जाएगा और पर्टिकुलर स्टूडेंट को असेस एवेलुएट किया जाएगा, तो वो वैलिडिटी हो गया। और पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए हम बेसिकली क्वेश्चन कंस्ट्रक्ट करेंगे, मगर क्वेश्चन अलग हो गया। हमारा पर्पज़ एक है मगर क्वेश्चंस में ऐसा ऐसा आइटम्स डाल दिए जो पर्पज़ को फुलफिल नहीं कर पाएगा, तो वहाँ पर वो क्या हो गया, एग्जाम इनवैलिड हो गया ना। तो वैलिडिटी वही ट्रूथफुलनेस ऑफ द टेस्ट रिजल्ट मीन्स वैलिडिटी, ठीक है। आंसर इज बिट ए। 36 ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टेस्ट इज वैलिड, इट इज रिलायबल, बट इफ ए टेस्ट इज रिलायबल इट मे और मे नॉट बी वैलिड। और एक सेकेंड स्टेटमेंट दिया है, इफ ए टेस्ट इज रिलायबल इट इज वैलिड।
बट इफ ए टेस्ट इज वैलिड इट मे और मे नॉट बी रिलायबल। यहाँ पर जो दो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट 2 गलत है, स्टेटमेंट फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि फर्स्ट टेस्ट वैलिड होना चाहिए। टेस्ट वैलिड होने से वो रिलायबल होगा। हम ये नहीं बोलेंगे टेस्ट रिलायबल है तो टेस्ट वैलिड होगा ना, फर्स्ट टेस्ट वैलिड होगा देन और रिलायबिलिटी के ऊपर हम सोचेंगे। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट वन, ओनली स्टेटमेंट फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट गलत है। तो यहाँ पर ओनली स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स वन, तो आंसर इज बिट सी। ओनली स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स वन, राइट, आंसर इज बिट सी। थोड़ा ट्विस्ट कर दिया जो ऑप्शंस। 37 2 statements given, no assessment is valid for all the purpose, a test is valid for a particular purpose only। सेकंड तो करेक्ट है, टेस्ट इज वैलिड फॉर ए पर्टिकुलर पर्पज, पर्टिकुलर पर्पज के लिए एक टेस्ट कंडक्ट किया जाता है और वो फुलफिल होता है तो वो टेस्ट वैलिड होता है। नो असेसमेंट इज वैलिड फॉर ऑल द पर्पज, सभी पर्पज के लिए मैंने ये नहीं है कि हम टेस्ट कंस्ट्रक्ट करेंगे और उसको असेस करेंगे कि सभी मैंने पर्पज हमारा फुलफिल हो जाएगा। पर्टिकुलर पर्पज को फुलफिल करने के लिए हम एक टेस्ट कंडक्ट करेंगे, उसके हिसाब से हम टेस्ट में उसके हिसाब से हम आइटम्स को कंस्ट्रक्ट करेंगे। क्वेश्चन जो कंस्ट्रक्शन होगा उसके हिसाब से आइटम्स हम लेंगे, नहीं कि ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट होगा, बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट वन, आंसर इज बिट डी। टाइप्स ऑफ वैलिडिटी देखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फेस वैलिडिटी, एग्जाम्पल दिया है, देखिए हम मेजर करेंगे स्किल इन डिवीजन। जो डिवीजन है, डिवीजन में स्किल क्या है, पूरा जो क्वेश्चन है वो डिवीजन के ऊपर रहेगा, क्योंकि हम डिवीजन के ऊपर स्किल को मेजर करना चाहते हैं कि बच्चा डिवीजन के ऊपर नॉलेज है कि नहीं, तो डिवीजन के ऊपर हम स्किल मेजर करेंगे, तो पूरा जो क्वेश्चन होगा वो डिवीजन के ऊपर होगा, तो वो है वैलिडिटी हो गया, वो फेस वैलिडिटी है। वहाँ पर जो एग्जाम हो गया वो क्या है, वैलिड हो गया, उसको हम फेस वैलिडिटी बोलेंगे। एग्जाम्पल को आप समझ लीजिए, व्हेन ए टेस्ट अपीयर्स टू मेजर व्हाट द टेस्ट यूजर विशेस और इंटेंट्स टू मेजर इट, इट इज सेड टू फेस वैलिडिटी। हमारा जो मेन इंटेंशन है कि जो छोटा बच्चा है उसका डिवीजन के ऊपर उसका क्या स्किल है, और जो पूरा क्वेश्चन फ्रेम होगा पूरा डिवीजन के ऊपर ही होगा। वहाँ पर और कोई क्वेश्चन ऐसा मल्टीप्लिकेशन की, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, ये सब क्वेश्चन हम नहीं देंगे, तो वो फेस वैलिडिटी है। सेकेंड वन, कंटेंट वैलिडिटी। कंटेंट एक एग्जांपल दिया है, देखिए कंटेंट वैलिडिटी का अल्टरनेट नेम है करिकुलर वैलिडिटी, रैशनल वैलिडिटी, लॉजिकल वैलिडिटी, ये सब अल्टरनेट नेम है कंटेंट वैलिडिटी। एक कंटेंट वैलिडिटी का एक एग्जांपल है, सपोज हम वी वांट टू कंस्ट्रक्ट एन अचीवमेंट टेस्ट ऑन इंग्लिश, हम इंग्लिश के ऊपर एक अचीवमेंट टेस्ट कंस्ट्रक्ट करेंगे। सो हम सभी सेक्शन से क्वेश्चन लेंगे, प्रोज, पोएट्री, नोवेल, ग्रामर, सभी सेक्शन से हम क्वेश्चंस ले लिए। फिर हम देखेंगे कि उसका नॉलेज क्या है, अंडरस्टैंडिंग क्या है, एप्लीकेशन क्या है, कि एनालिसिस क्या है, सिंथेसिस, एवेल्यूएशन, ये सब चीज़ को देखेंगे। ये कंटेंट वैलिडिटी रिफर्स टू द एक्सटेंट टू विच ए टेस्ट कंटेंट्स आइटम्स, टू विच ए टेस्ट कंटेंट आइटम्स रिप्रेजेंट द बिहेवियर दैट वी आर गोइंग टू असेस। हम इंग्लिश के ऊपर यदि हम अचीवमेंट मेज़र करना चाहते हैं, अचीवमेंट टेस्ट ऑन इंग्लिश, तो हम प्रोज, पोइट्री, ग्रामर, नोवेल, सभी से हम क्वेश्चंस लेंगे और फ्रेम करेंगे, और फिर हम स्टूडेंट का जो नॉलेज है, कितना अंडरस्टैंडिंग है, और उसका एप्लीकेशन क्या है, और बेसिकली हम एनालाइज करेंगे और सिंथेसाइज करेंगे और देन एवेल्युएट करेंगे। ठीक है, ये कंटेंट वैलिडिटी है। कॉन्करेंट वैलिडिटी क्या है, साइमल्टेनियसली क्या होगा, 2 टेस्ट लिया जाएगा, जैसे दिया है तो टर्म, देखिए यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ। नाउ द टेस्ट इज एडमिनिस्टर्ड अपॉन द इंडिविजुअल, अभी हम इंडिविजुअल के ऊपर एक टेस्ट एडमिनिस्टर करेंगे, उसी समय हम इंटेलिजेंस स्केल ले लिए, एडमिनिस्टर्ड अपॉन द सेम इंडिविजुअल, तो 2 साइमल्टेनियसली हो गया। एक तो हम चाइल्ड के ऊपर टेस्ट एडमिनिस्टर कर रहे हैं, उस समय हम इंटेलिजेंस स्केल ले जाएंगे, जो गिफ्टेड है, कि हम बोलते हैं कि जैसे मोर देन 90 एवरेज है, कि मोर देन जो 90 to 109, जो इंटेलिजेंस स्केल में मोर देन 90 to 109 वो मोर देन एवरेज है, तो ये सब जो लेते हैं।
बेसिकली तो इंटेलिजेंस के लिए हम एक टेस्ट एडमिनिस्टर, बेसिकली इंडिविजुअल के ऊपर एक टेस्ट एडमिनिस्टर किया, उसके बाद फिर उसके ऊपर एक इंटेलिजेंस स्केल ले लिया, फिर हम कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन देखेंगे। इंटेलिजेंस स्केल ले लिया कि जो स्टूडेंट का इंटेलिजेंस लेवल है ये है, और उसके ऊपर एक टेस्ट एडमिनिस्टर कर दिया। यदि दोनों का कोरिलेशन हाई होगा, ये दो प्रकार का एग्जाम हो गया, दो प्रकार का टेस्ट हो गया साइमल्टेनियसली, यदि कोरिलेशन हाई हुआ तो हम ये बोलेंगे तो इंटेलिजेंस टेस्ट इज सेड टू हैव हाई कॉन्करेंट वैलिडिटी। समझ में आ रहा है? तो ये है कॉन्करेंट वैलिडिटी, आपको याद रखना है। जब साइमल्टेनियसली दो प्रकार का टेस्ट होगा, जैसे यहाँ पर एक नॉर्मल स्टैंडर्डाइज टेस्ट हुआ, ठीक है, जो स्टूडेंट का इंटेलिजेंस को मेजर करने के लिए, और उस समय हम फिर इंटेलिजेंस स्केल ले लिए क्या कि वो एवरेज है ना बिलो एवरेज है कि मोर देन एवरेज है, ऐसे एक स्केल ले लिए। तो एक तो टेस्ट एडमिनिस्टर किया गया, उससे हम डिटेक्ट कर लेंगे कि वो मोर देन एवरेज की बिलो एवरेज की एवरेज नहीं। तो ये है। और एक चीज़ यहाँ पर याद रखिए, कॉन्करेंट वैलिडिटी इज रिलेवेंट टू द टेस्ट एम्प्लॉयड फॉर डायग्नोसिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आपको मिल सकता है। जो कॉन्करेंट वैलिडिटी है बेसिकली इज रिलेवेंट टू द टेस्ट एम्प्लॉयड फॉर डायग्नोसिस। और एक कॉन्स्ट्रक्ट वैलिडिटी क्या है? कॉन्स्ट्रक्ट वैलिडिटी क्या है कि पर्टिकुलर पर्पज को हम देखेंगे, जैसे उसका रीजनिंग एबिलिटी क्या है, कि प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी क्या है, स्कॉलास्टिक एप्टीट्यूड, मैकेनिकल कॉम्प्रिहेंशन, एंजाइटी, न्यूरोटिसिज्म, ये सब जो ये कॉन्स्ट्रक्ट एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को मेजर करने के लिए, इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक, उसका एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक को मेजर करने के लिए हम उसके हिसाब से टेस्ट कंस्ट्रक्ट करेंगे और उस तरीके का आइटम्स लेंगे और हम देखेंगे, ठीक है, वो कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी है। ठीक है, एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स को मेजर करने के लिए टेक्स्ट क्या होगा, टेस्ट कंस्ट्रक्ट होगा और उसके हिसाब से हम आइटम्स लेंगे, वो जो विश है, जो डिजायर है, उसको फुलफिल करने के लिए। सो वेन एवर we wish to interpret the assessment results in terms of some individual characteristics, we are concerned with a construct. Basically ये एक साइकोलॉजिकल, क्योंकि यहाँ पर देखिए एंजाइटी, न्यूरोटिसिज्म, स्कॉलास्टिक एप्टीट्यूड, ठीक है, ये सब कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी में आ जाता है। प्रेडिक्टिव वैलिडिटी क्या है, इसको थोड़ा एग्जाम्पल है। आप बैचलर इन एजुकेशन, आप बीएड करने के लिए आप एंट्रेंस दिया, और जब बैचलर इन एजुकेशन के लिए एंट्रेंस दिया, एंट्रेंस पास हो गए, उसके बाद आप जो बैचलर इन एजुकेशन का एग्ज़ाम दिया, नॉर्मल आप बैचलर इन एजुकेशन कोर्स किया और अल्टीमेटली एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम में भी अच्छा परफॉर्म किया, तो इससे पता चलता है जो कोरिलेशन होगा, आप उसके लिए एंट्रेंस दिए थे, फिर उसके बाद आपका प्लेसमेंट हुआ था बैचलर इन एजुकेशन कोर्स में, और बैचलर इन एजुकेशन कोर्स में भी आप अच्छा किया एग्जाम में, तो यहाँ पर कोरिलेशन ज़्यादा हो गया। इसमें हम बोलते हैं जो एंट्रेंस टेस्ट था, वी से दैट द एंट्रेंस टेस्ट हैज हाई प्रेडिक्टिव वैलिडिटी, तो वो हाई प्रेडिक्टिव वैलिडिटी हो जाता है। आप एंट्रेंस दिया था एक पर्टिकुलर कोर्स के लिए, और उसके बाद वो पर्टिकुलर आपको एंट्रेंस एग्जाम में सक्सेस मिल गया, और आप उसके बाद आप कोर्स शुरू किया, कोर्स में भी अच्छा आपका परफॉर्मेंस रहा, तो यहाँ पर कोरिलेशन हाई हो गया। तो ये है कि जो जिस प्रेडिक्शन के हिसाब से आप एंट्रेंस टेस्ट दिए थे, उसके हिसाब से आप फुलफिल किया, वो कोर्स में आपका एनरोलमेंट हुआ और आपका अच्छा परफॉर्मेंस दिया। तो इस तरीके का एक प्रेडिक्टिव वैलिडिटी, इट रिफर्स टू द इफेक्टिवनेस ऑफ ए टेस्ट इन प्रेडिक्टिंग फ्यूचर आउटकम्स इन ए पर्टिकुलर एरिया, ठीक है। और नेक्स्ट वन, क्राइटेरियन। क्राइटेरियन वैलिडिटी एविडेंस टेल्स अस जस्ट हाउ वेल ए टेस्ट करेस्पॉन्ड्स विद ए पर्टिकुलर क्राइटेरिया। क्राइटेरियन वैलिडिटी इंक्लूड्स बोथ प्रेडिक्टिव एंड कंकरेंट, ये याद रखिए। जो क्राइटेरिया क्या है, हम जब कुछ क्राइटेरिया को लेंगे, कुछ क्राइटेरिया को लेके हम टेस्ट कंस्ट्रक्ट करेंगे और उस तरीके का आइटम्स लेंगे, जो क्राइटेरिया को फुलफिल करने के लिए उस तरीके का आइटम्स हम लेंगे जब क्वेश्चन का फ्रेम किया जाएगा। वो क्राइटेरियाज को मेज़र करने के लिए जो भी क्राइटेरियाज हम लेंगे, ठीक है, जो भी पैरामीटर्स हम लेंगे, वो पैरामीटर्स के हिसाब से हमारा क्वेश्चन फ्रेम होगा। फिर हम
ठीक है, उसके हिसाब से क्वेश्चन होगा, होने के बाद वो ऑटोमेटिकली जो वैलिड हो गया वो क्राइटेरियन वैलिडिटी है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल भी दिया है, स्पीकिंग रेडीनेस टेस्ट स्कोर्स माइट बी यूज टू प्रेडिक्ट स्टूडेंट्स फ्यूचर अचीवमेंट इन स्पीकिंग, और ए टेस्ट ऑफ डिक्शनरी skills might be used to estimate the students current skills in the actual use of the dictionary. The first example predictive validity है, second example concurrent। तो both criterion में both आता है, both predictive and concurrent। तो यहाँ पर कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ज़्यादा यूजफुल है। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी कुछ क्वेश्चंस को चलेंगे। Which of the following is a parametric test? parametric टेस्ट ये टी टेस्ट है। पैरामेट्रिक टेस्ट क्या है? हम एक सैंपल, एक पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन से हम एक सैंपल लेंगे। तो जो पॉपुलेशन एक ह्यूज पॉपुलेशन है, सैम्पलिंग मेथड, जैसे कंपनी में 5000 वर्कर्स है, हमको डिटेक्ट करना है कि ईयरली इनकम ऑफ द वर्कर। तो ईयरली इनकम ऑफ द वर्कर, इसके लिए हम क्या करेंगे, 5000 वर्कर से जो डाटा कलेक्ट नहीं करेंगे, उससे एक सैंपल लेंगे, कुछ क्राइटेरिया होगा, पैरामीटर होगा, तो वो पैरामीटर के हिसाब से हम होल पॉपुलेशन से एक सैंपल लेंगे। ठीक है, सो थ्रू स्पेसिफिक पैरामीटर वी कैन चूज ए सैंपल फ्रॉम द यूनिवर्स। जो टोटल पॉपुलेशन है उससे हम सभी पीपल को एक इंच नहीं लेंगे, उससे एक सैंपल लेंगे और सैंपल से हम डाटा कलेक्ट करेंगे और फिर हम अल्टीमेट कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे। तो जो पैरामेट्रिक टेस्ट होगा वो टी टेस्ट होगा, नॉट साइन मीडियन की ची स्क्वायर, आंसर इज बिट बी, टी टेस्ट। 39 which of the following is not an assumption of a parametric test? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन तो assumption है, रैंडमाइजेशन, होमोजेनिटी, ये डिसकंटिन्यूटी नहीं है। इट इज़ नॉट एन assumption ऑफ ए पैरामेट्रिक टेस्ट, डिसकंटिन्यूटी एक assumption नहीं है, आंसर इज बिट डी। एक क्वेश्चन और 40 को चलेंगे। Which one of the following is used to determine the test performance in terms of certain psychological traits? certain psychological traits, ठीक है, साइकोलॉजिकल ट्रेड्स को तो किस तरीके का वैलिडिटी टेस्ट हम लेंगे? जो हम जो साइकोलॉजिकल ट्रेड्स को हम स्टडी कर पाएंगे। मैं बताया था कि यहाँ पर जो है कॉन्स्ट्रक्ट वैलिडिटी, क्योंकि कॉन्स्ट्रक्ट वैलिडिटी जो होता है बेसिकली क्या है ना, एक पर्टिकुलर ट्रेड को हम देखेंगे और पर्टिकुलर ट्रेड को जब हम मेजर करने के लिए चाहेंगे तब इसी समय हम क्या करेंगे ना, ऐसा एक टेस्ट कंस्ट्रक्ट होगा और उसमें उसी तरीका का क्वेश्चंस को फ्रेम किया जाएगा, क्योंकि एक पर्टिकुलर ट्रेड को मेजर करना है, तो वही पर्टिकुलर ट्रेड के ऊपर जो भी क्वेश्चंस होगा वही फ्रेम होगा। तो ठीक है, तो ये है कंस्ट्रक्ट, आंसर इज बिट बी। 41 which one of the following test is used for personality diagnosis? पर्सनालिटी के लिए एप्टीट्यूड, प्रोजेक्टिव इंटेलिजेंस अचीवमेंट, प्रोजेक्टिव टेस्ट, पर्सनालिटी के लिए पर्सनालिटी डायग्नोसिस, प्रोजेक्टिव टेस्ट। ठीक है, आंसर इज बिट बी। 42 which of the following variables does not fall into continuous? एज होगा कंटिन्यूस, सपोज हम एज ग्रुप ले जाएंगे 5 to 10 ईयर्स, ये 10 to 15 ईयर्स। ईयर टाइम भी होगा, जो टाइम होगा जैसे 9 to 10 AM 1 आवर गैप, कि 10 to 11 AM, 11 to 12 AM ऐसे ले सकते हैं। टाइम भी होगा, एज होगा, टाइम होगा, क्लास साइज नहीं होगा। क्लास साइज क्या जानते हो? जैसे क्लास साइज में बता देता हूँ, ये जो क्लास साइज है, जैसे क्लास इंटरवल है 0 to 10, 10 to 20, इनका मिड वैल्यू, ये दोनों को ऐड कर देंगे डिवाइड बाई 2, ये क्लास साइज है। ठीक है, क्लास साइज डिफरेंस है, सॉरी क्लास साइज जो है, सॉरी जो क्लास साइज है ना, हम डिफरेंस देख, सपोज यहाँ पर देखिए 10 to 20, यहाँ पर क्लास साइज क्या है 10 है, कि 20 to 30, यहाँ पर क्लास साइज क्या है 10 है,
और ये कॉन्टिन्यूस सीरीज नहीं है, वेट जैसे कॉन्टिन्यूस सीरीज, तो ये नहीं है, ये आंसर नहीं होगा। वेट जैसे हम वेट ले जाएंगे 40 to 50 kg कि 50 to 60 kg, तो ये सब कॉन्टिन्यूस फॉर्म में आएगा, मगर क्लास साइज एक कॉन्टिन्यूस सीरीज नहीं है। ठीक है, आंसर इज बिट सी। विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्टैंडर्ड स्कोर्स, अभी मैं बताया स्टैंडर्ड स्कोर्स, टी स्कोर्स, जेड स्कोर्स, स्टर्नाइन स्कोर, मैं अभी बताया स्टैंडर्ड स्कोर। तो स्टैंडर्ड स्कोर से हम डिटेक्ट करेंगे कि स्टूडेंट एग्जाम दे दिया, तो जो स्टूडेंट का परफॉर्मेंस है, जो स्टूडेंट का स्कोर है, वो मीन स्कोर से कितना डिफर करता है, मीन स्कोर से कितना ज़्यादा है कि मीन स्कोर से कितना कम है। तो तीनों स्कोर्स आएगा, टी स्कोर, जेड स्कोर, स्टर्नाइन स्कोर। आंसर इज बिट डी 1, 2 और 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44, जो टर्म प्रोजेक्ट है ना, वॉज यूज फॉर द फर्स्ट टाइम बाय डस इन द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी में जो प्रोजेक्ट टर्म है वो उसको कौन इंट्रोड्यूस किया? एडवर्ड थॉर्नडाइक, बी एफ स्किनर, कार्ल रोजस, सिगमंड फ्रीड। तो आंसर इज बिट डी, सिगमंड फ्रीड। जो प्रोजेक्टिव मेथड है, ठीक है, जो बेसिकली प्रोजेक्टिव टेक्निक है, जो पर्सनालिटी को मेजर करता है, और एक प्रोजेक्टिव वहाँ पर एटीट्यूड में एक लिकर्ट स्केल है और प्रोजेक्टिव टेक्निक है। यहाँ पर पर्सनालिटी को मेजर करने के लिए क्या है? जो प्रोजेक्टिव मेथड है, नहीं कि सिगमंड फ्रीड। हु डेवलप्ड पर्सनालिटी इन्वेंटोरी? पर्सनालिटी इन्वेंटोरी कार्ल रोजर्स, सिगमंड फ्रीड, वुडवर्थ, सिम्पसन। जो है आंसर इज बिट सी, वुडवर्थ। पर्सनालिटी इन्वेंट, पर्सनालिटी क्या है? पर्सनालिटी में हम दो चीज़ देखते हैं, एक आउटवर्ड अपीयरेंस, ठीक है, और एक इनर एबिलिटी। तो दो, वो इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक है इनर क्वालिटी, आपका इनर क्वालिटी क्या है, आपका अंदर में क्या क्वालिटी है, और एक है आउटवर्ड परफॉर्मेंस, आपका जो आउटवर्ड फिजिकल अपीयरेंस क्या है, कि आउटवर्ड मेंटल अपीयरेंस क्या है। तो दोनों आ जाएगा। तो यहाँ पर पर्सनालिटी इन्वेंटरी वुडवर्थ है। पर्सनालिटी रिफर्स टू द, तो मैं बताया एक एक्सटर्नल अपीयरेंस है और एक इंटरनल अपीयरेंस। आपका इंटरनल क्वालिटी क्या है? आपका इंटरनल क्वालिटी ह्यूमिलिटी है, आप सोवर हो, ओके, आप यू बिलीव ऑन पीस, ठीक है, कि आपका सपोज बिहेवियर अच्छा है, ये सब इनर आ जाता है। तो एक्सटर्नल, आपका स्पीकिंग स्किल अच्छा है, ठीक है, आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है। तो ये जो आउटवर्ड होता है, आपका फिजिकल अपीयरेंस क्या है, तो ये है। तो पर्सनालिटी रिफर्स टू द एक्सटर्नल अपीयरेंस, ये ठीक है, इंटरनल क्वालिटीज, दोनों, बोथ ए एंड बी। ओके, आंसर इज बिट सी। तो ये थोड़ा क्वेश्चंस में डिस्कस किया, ठीक है। तो असेसमेंट एंड एवेल्युएशन इतना ज़्यादा बहुत बड़ा चैप्टर है। सो माय फ्रेंड्स, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, share my channel, like my channel. In subsequent time I will bring some nice videos. So आज ही इतना है, थैंक यू।